नमस्कार। आज आईएसएल झरिया के प्रांगण से हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं और हमारे साथ आईएसएल झरिया के प्रिंसिपल श्री एच.के. ठाकुर जी हैं, तो उनसे कुछ सवाल और वार्तालाप करेंगे। मेरा सवाल सर से ये है कि आजकल के इस मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप को देखते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हो चुकी हैं और चीज़ें फाइनेंशियल मैटर्स पर ज़्यादा उलझ जाती हैं कभी कभी, और बहुत ग्लैमर भी हो गया है। तो मैं सर से इस पर उनकी परिभाषा क्या है, शिक्षक और जो छात्र के बीच संबंध है, उसके बारे में सर क्या सोचते हैं? जहाँ तक एक शिक्षक बनने की प्रक्रिया है और इसको एक प्रोफेशन के रूप में चुनना किसी भी व्यक्ति के लिए, वहाँ जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर इसको एक प्रोफेशन के रूप में चुनता है कि मुझे शिक्षण या अध्यापन के क्षेत्र में जाना है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह रहती है कि इससे हमारी रोजी रोटी चलेगी, हमारा घर भी इसी से चलेगा। परंतु जहाँ तक शिक्षण और अध्यापन की बात है कि एक हद के बाद अगर इसका पूर्ण व्यवसायीकरण कर दिया जाए तो जो शिक्षा की परिभाषा एक आधारभूत संरचना हमारे देश में है वह ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि मेरा आज भी मानना है कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं कि पूर्ण व्यवसायीकरण अगर शिक्षा का कर दिया जाए तो वह शिक्षा उनके लिए एक्सेस नहीं रह जाएगी। अगर हम किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी खास क्षेत्र में रहते हैं, शहरी वातावरण में रहते हैं, तो हम अपने वातावरण को ही पूरा देश समझ लेते हैं। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इस शहर से बाहर सुदूर गांव में जहां अभी आधारभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंची है, उन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। और अगर इसका पूर्ण व्यवसायीकरण कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि जो आगे बढ़ने की दौड़ है उसमें वह बच्चे पीछे छूट जाएंगे, जो बच्चे भी भारत के धरोहर हैं। हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। पूर्ण व्यवसायीकरण बिल्कुल ही उचित नहीं है। धन्यवाद सर। और आज ही सुबह सुबह सर ने जो कहा, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा स्वामी विवेकानंद का, उसमें लिखा था कि अगर बच्चे शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते हैं तो शिक्षा को भी कम से कम बच्चों के लिए खेत और गांव तक पहुंचना पड़ेगा। तो सर ने भी वही परिप्रेक्ष्य में कहा। धन्यवाद। अब हम लोग एक ओके, नाउ वी हैव two of our senior most English teachers, and the question which I will ask them is also related to the subject. It has been seen that English is found to be one of the critical aspect as far as the growth of students is concerned in their professional field. So what is your take on this, sir? Ki how important is English when they are studying in school so that they can compete in this professional world? As far as English is concerned, India was under a colonial power, and British implemented English in India forcibly, and this language has become the language of international language. And according to this language, entire technology and medium of communication totally based on English all over the world. If you go to South Africa, in any remote country, you can communicate with them with English, but not in any other language. Because of the colonialism all over the world under British. So it is effective in India very glamorously because of the rule of 200 years English in India, and today we cannot go beyond this language because that is what you call a colonial sentiment, you can say, that if we speak English 2 or 3 lines, we feel very proud that I know something better than others. So this type of sentiment cannot be removed
because language and life both are intermingled with each other. So English must be important each and every society today in technology, even in the field of any aspect of life. Okay? And sir, your take on this? Tapas sir, what you have asked me, it is very relevant question nowadays, because English is a global language, and we are under the rule of British. So obviously, in those days, the Britishers appointed some Indian people to communicate with them or for their business purpose. So English was actually from the beginning of the British era, in India, predominantly in the society, we can say. But nowadays, what presently you are talking about, I strongly believe that English should be taught from the junior level, okay, so that they should be habituated with the language. It is not that we should give the children such circumstances where they should use the language. Okay, in the school also, if you go to the junior section of the various school, even our school, we are grooming from the very grassroots level, so that at least without the logical structure of the grammar, basically they should know how to use the language. In the grassroots level, we are not using grammatically in the such way. We should just try to inspire them to speak at least. So that is the beginning for the LKG section or KG section, like that. We need not to give stress upon the grammatical senses of the grammar. Okay, we should, that is the communication skill. In the British, in the Great Britain, do you think that all the people are speaking grammatically English? Because they are, by birth, they are speaking the language. Just we are our native language. We are just using our own mother tongue. So they are taking it as their mother tongue. But it is the foreign language. So we have to adapt in the society that language. We have to put them in such circumstances where they could use the language. That is very important from the grassroots level. And as it is the global language, it is very important to know. Because if you go to engineering level, engineering study, professional studies, MBAs, medical, engineering, all, it is very much compulsory for the student to know the language. Okay. And that is called the communicative English. Okay, communication. That is very important. And nowadays, CBSE also is trying to emphasize on that. How to implement this communicative English. Just ASL. What is that? ASL, that use of the English, assessment of the speaking and listening. What for this is implemented? It is to enrich the language ability of the students. If we try to practice most logical way, then we can uplift this. What you are talking about after plus 2? They are coming in the broad world, global world, where they are using the language. They are coming to the professional field. Okay. And in that field, English is must. If you are just conducting conference or any company's meeting, we are just using this language. Without this language, we will be nowhere. We cannot give our viewpoints in the large meeting. Okay. Whatever that is, expression is very important. So without English, we cannot survive in the modern society. So this we are giving stress even in the plus 2 level, even in the class 10 student. From this time we are implementing this, and if we are just succeeding in this in the school level, I think there will be no problem in the professional field. Okay, that is called communicative English. Okay, even in the CBSE English now they are implementing communicative English, not that literature only. So from there only, if we are seriously thinking about how to implement among the student, and we are giving them such environment to use that language, so obviously they will be just using the language very frequently. There is no problem at all, I think, in the professional field. Thank you, sir. So the conclusion is that
whether you are grammatically correct or not, that doesn't matter, but you should have a proper communicative English so that you can at least communicate with the people. Basic level. Yeah, okay. Talking about the basic level. Okay, thank you, sir. अब हमारे साथ केमिस्ट्री की सीनियर टीचर हैं। मैं मैम से जानना चाहूँगा कि जब 10th के बाद बच्चे साइंस लेते हैं मैम, तो बहुत वो लोग, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी कर देते हैं और सब्जेक्ट को लेने के बाद कुछ समय बाद वो लोग बहुत उलझन में पड़ जाते हैं, सब्जेक्ट भी समझ नहीं पाते, छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आप बच्चों को क्या सलाह दीजिएगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी तरफ से ये सलाह है सभी बच्चों को कि सब्जेक्ट चॉइस हमेशा अपने पसंद के अनुरूप करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर और अपने सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो करके कोई एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा उसके विषय में विचार ना करके वो जल्दबाजी में चॉइस ऑप्ट कर लेते हैं, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, जिसका कारण है उसके सराउंडिंग्स का इन्फ्लुएंस। ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को सबसे पहले ये एनालाइज करना चाहिए हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, हम अपने अनुसार किस चीज़ को भली भांति पढ़ पाएंगे, हम किस में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय में, आज के परिवेश में, सोसाइटी में बहुत सारे विषय हैं, इनफैक्ट सभी विषयों पर करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इतना है कि हम लोगों को सही दिशा नहीं पता है, हम लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। इसीलिए बच्चों को चाहिए कि पहले जो भी आफ्टर 10th आप अपने आप को देखें, समझें कि हम किस विषय को बड़े अच्छे से पढ़ पाएंगे, हम अपने आप को किस विषय में एक्सप्लोर कर पाएंगे, उसी सब्जेक्ट का ऑप्शन लेना चाहिए। बिकॉज़ आगे चल के कोई परेशानी ना हो, हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान हो कर के ना पढ़ें, बड़े आराम से पढ़ें और उसमें हमको बहुत अच्छा ऑप्शन करियर का मिले, ऐसे ही सब्जेक्ट को चॉइस करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी बच्चों के थ्रू ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को ये आज़ादी दें कि वो समझ पाएँ कि वो क्या पढ़ सकते हैं। कभी वो जैसे मैं एक साइंस टीचर हूँ तो मैं अपने ही विषय में कहूँगी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कभी कभी फैमिली की तरफ से भी ये प्रेशर रहता है कि साइंस ऑप्ट करिए, जो कि ये कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको कुछ एक सब्जेक्ट्स में लैकिंग होता है, तो वो बाद में वो बच्चे सफ़रर होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, सबसे निवेदन करना चाहूँगी अपने बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, कि सब्जेक्ट आप वही चूज़ करें, वही ऑप्ट करें जिसमें आप बहुत ज़्यादा रुचि रखते हो, क्योंकि आज के ज़माने में हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा करियर एस्पेक्ट्स हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को पहचानना पड़ेगा। आपका इंस्टिंक्ट्स, बहुत लोग स्टूडेंट्स को मैं देखा हूँ जो कहते हैं कि मुझे 90% आया तो मैं साइंस ले लूँगा, लेकिन मेरा मानना है कि आपका इंस्टिंक्ट्स आपका मार्क्स नहीं है, आपका एप्टीट्यूड आपका मार्क्स नहीं है। तो मैम का भी कहना यही है कि आप अपने एप्टीट्यूड और इंस्टिंक्ट्स को पहचानिए, उसके बाद सब्जेक्ट्स के लिए ऑप्ट कीजिए। थैंक यू मैम। हमारे साथ 3 कॉमर्स के सीनियर टीचर्स लोग हैं। मेरा जो पर्सपेक्टिव रहा सर कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर, जब मैं बाहर स्टूडेंट से बात करता हूँ तो वो लोग कहते हैं, जैसे मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप क्या लेंगे, तो बोलता है देखते हैं मार्क्स कैसा आता है। मतलब मार्क्स कम आएगा तो वो कॉमर्स लेंगे, मार्क्स अच्छा आएगा तो वो साइंस लेंगे। तो ये जो फीलिंग है सर, इसके साथ जब बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं तो आप कैसे उनको मोटिवेट करते हैं कि आप किसी भी कंपेयर में आप इन्फीरियर नहीं हैं, और आप भी, कॉमर्स खुद एक बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है, उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो आप लोग कैसे मोटिवेट करते हैं? Good morning, everybody. Good question, sir. Number of times we have faces this type of problem. When you are getting the student personally, and in the classroom also, we are facing this type of problem. Students, those students are getting good marks. They are always trying to take by pressure, I can say, from their atmospheric pressure, that is surrounding pressure, family pressure. They would like to go to the science stream, to be an engineer, medical line, or whatever may be the technical line. But I always encourage the student, you understand one thing, that what the capability you have, what's the marks you score, that doesn't matter. This most important thing, you have to realize what's the capability inside your mind, and what you think,
what your ultimate objectives. Your ultimate objectives is to earn money, or ultimate objectives is to be a good man in the society. So you first decide your objective, then you come forward. So number of times I faces this type of problem, and I always encourage the student, you just decide and you come to commerce by your heart. Suppose you are getting less marks and you are inferior complex you have, so don't think about that matter. You always think what are the basic criteria in this particular subject, or what are your objectives. Just would like to say what are the objectives you are bearing, and you follow that objectives and you make most discipline on that particular line, you will be successful. Suppose in commerce there are so many streams are there, availability is maximum availability, and less work you can get more output. In commerce, actually what we are getting students, we are motivating the student that you are putting your less time and you get maximum output. So maximum output in this monetary consideration, the business, the total world is going on the monetary consideration. So in this aspect, suppose you are going to earn more, that this line will help you in your future. So you love this subject by your heart and make your concentration on this particular stream. You will be 100% successful, with the teacher giving you the assurance that you will be successful. So you have to understand what's your actually objective, what you are going to do. This you have to decide, okay? And teacher will help you for this particular matter. Thank you. Sir, your take on this? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, सोसाइटी इस तरह का है जहाँ पे सब्जेक्ट को मार्क्स के साथ रिलेट करके देखा जा रहा है। इफ़ द स्टूडेंट गेटिंग 90%, अच्छा तो 90% है, ऑफ कोर्स ही इज़ गेटिंग साइंस लेगा वो। अच्छा तुम्हारा नंबर कम आया है तो तुम साइंस सकोगे नहीं तो तुम कॉमर्स ले लो। तो कहीं ना कहीं ये एक कंसेप्ट बैठा हुआ है। अगर कोई 94% वाला स्टूडेंट कॉमर्स लेता है तो वहाँ एज ए टीचर कभी कभी हम ही पूछ लेते हैं, तुम्हारा मार्क्स तो बहुत अच्छा था तो क्यों कॉमर्स लेकर के पढ़ रहे हो, साइंस क्यों नहीं लिए तुम। तो इस सोच को हमको बदलना होगा कि आप अच्छे मार्क्स हैं या पुअर मार्क्स है, या आपका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बार बच्चे 10th में कम मार्क्स भी स्कोर करते हैं और वो साइंस लेकर के आगे बहुत अच्छा कर जाते हैं, और बहुत बार बच्चे अच्छा मार्क्स लेकर के कॉमर्स लेते हैं, वहाँ पे ख़राब कर जाते हैं। तो ये डिपेंड, तो इस चीज़ को, ये सोच को हमको बदलना होगा। और रही बात लाइनअप की, बच्चों को मोटिवेट करने की, तो जो बच्चे इन प्रेशर या मार्क्स कम है इसकी वजह से कॉमर्स में आए हैं, तो उनको नो डाउट एज ए टीचर हम ज़रूर मोटिवेट करते हैं कि 10th में अगर मार्क्स कम है सो अ लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने है, पूरा कैरियर है। तो यहाँ कॉमर्स में बहुत सारे फील्ड है, जैसा कि सर ने भी बतलाया कि देयर आर वेरियस एरियाज़ जहाँ पे आप कॉमर्स पढ़ करके और आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को लेकर के ऊपर जा सकते हैं। तो ये है कि स्टूडेंट के कंसेप्ट को चेंज करना होगा कि मार्क्स कम या बेसी को देख करके, कम या ज़्यादा को देख करके हम सब्जेक्ट को सेलेक्ट ना करें। आप अपने इंटरेस्ट को फोकस कीजिए और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपका क्या कहना है? All the best, teachers and my principal साहब and वाइस प्रिंसिपल साहब। मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आप साइंस में ज़्यादा नंबर लाते हो या कॉमर्स में लाते हो या अदर सब्जेक्ट में सोशल साइंस में लाते हो, दैट इज़ द अदर मैटर। आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि फ्यूचर्स में हाउ कैन यू प्रोग्रेस इन द लाइफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड द गोल इन फील्ड, इन विच फील्ड्स, इन विच क्राइटेरिया, इन विच स्कोप यू वांट टू गो। आप किस तरफ जाना चाहते हो, पहले आप फ्यूचर को डिसाइड करो, और फ्यूचर को डिसाइड करके ही आप साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स को आप चूज करो। दैट विल बी बेटर फॉर यू। और मेरा मानना है कि ये मार्क्स के आधार पर आप चूज मत करो। आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस ओर जा रहा है। आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो या मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू चूज द साइंस सब्जेक्ट्स। अगर आप कॉमर्शियल लाइन में जाना चाहते हो,
आपका मार्क्स ज़्यादा है साइंस सब्जेक्ट में, तो देयर विल बी कन्फ्यूजन. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to choose your goal. What is your goal of your life? And according to your goal, you must choose the subjects and faculty. That will be better for you and for betterment of your life. That's all. थैंक यू सर. तो बच्चों, आप जब अपना सब्जेक्ट चुनें तो अपने इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखें और मार्क्स को अपना पैमाना ना बनाएं सब्जेक्ट चुनने का. दैट विल बी बेटर फॉर यू इन योर फ्यूचर. थैंक यू. ओके, हमारे साथ विद्यालय के कमर्शियल आर्ट के सीनियर टीचर हैं और इनसे जो मेरा सवाल है कि जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, चाहे वो गार्जियन हो चाहे वो स्टूडेंट हो, अगर वो साइंस बैकग्राउंड से है सर तो इंजीनियरिंग मेडिकल का फॉर्म वो भरेंगे, चाहे वो किसी के देखा देखी में भर रहे हो या खुद का इंटरेस्ट हो. और अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो वो सीए करेंगे या बीकॉम करेंगे. आप एक आर्ट्स के टीचर है सर, और कोई बच्चा अगर आर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उसके लिए क्या स्कोप होता है, क्योंकि इसके बारे में मुझे लगता है धनबाद जैसे शहर में लोगों को बहुत कम जानकारी है. गुड मॉर्निंग. स्टूडेंट्स से यही कहना है हमको कि जैसे हम लोग साइंस लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं और हम लोगों को मालूम है कि हम लोग साइंस कॉमर्स लेकर के क्या आगे बढ़ के क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आर्ट लेकर के हम लोग आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं इसका नॉलेज हम लोगों को नहीं है और जल्दी स्टूडेंट को ये नॉलेज मिलता भी नहीं है. हम लोग जब 11th में एडमिशन लेते हैं और आर्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तब उस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ आर्ट का क्वालिटीज़ होता है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है कि 12 के बाद हम आर्ट को लेकर के अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं. तो 2 साल में हम लोग उसको ये बता भी देते हैं कि हम लोग आर्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, और अभी भी हम ये बता रहे हैं कि आर्ट को लेकर के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. 12 के बाद हम लोग आर्ट से रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा कोर्स कर सकते हैं और वो कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट. बैचलर डिग्री हम लोग करते हैं जो कि 4 साल का होता है और ये बैचलर डिग्री करके हमको टीचर्स भी, आर्ट टीचर भी बन सकते हैं हम लोग, और भी डिफरेंट प्रोफेशन में भी जा सकते हैं. उसके बाद 4 साल का बैचलर डिग्री होने के बाद हम लोग 2 साल का मास्टर डिग्री करते हैं. 2 साल का मास्टर डिग्री करने के बाद हम लोग मास्टर ऑफ फाइन आर्ट जिसको कहते हैं, इसको करने के बाद हम लोग और भी बहुत फील्ड में जा सकते हैं. कुछ ऐसा फील्ड है जैसे एनिमेशन है, मल्टीमीडिया है. उसके बाद जब हम लोग फाइन आर्ट का ये मास्टर डिग्री का कोर्स करते हैं तो उसमें स्कल्पचर होता है, टेक्सटाइल होता है, सेरेमिक्स होता है, पॉटरी होता है और सबका अलग अलग फील्ड है. जैसे हमारा स्कूल में लिया है कमर्शियल आर्ट. कमर्शियल आर्ट लेकर के अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हैं, डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, हम लोग एनिमेशन में जा सकते हैं, और जिसका स्कोप आज इंडिया में वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है. हमारे इंडिया में आज एनिमेशन या कमर्शियल आर्ट का जो फील्ड है ये सबसे बड़ा फील्ड है. वर्ल्ड का कोई भी कॉर्नर में अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर इजीली आर्टिस्ट अवेलेबल है तो इंडिया में सबसे सस्ता में इंडिया में अवेलेबल है और वर्ल्ड का मैक्सिमम वर्क इंडिया में बनता है. इसलिए इंडिया में आर्ट फील्ड, कमर्शियल आर्ट, एनिमेशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा वर्क होता है और आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प होता है. थैंक यू सर. तो इंडिया का आप हिस्ट्री भी देखें तो आप अजंता केव्स चले जाएं या आप हड़प्पा कल्चर को देखें, हर एक में आपको इंडिया का एक ट्रेडिशनल आर्ट दिखेगा. जैसा सर ने कहा कि वर्ल्ड लेवल पर अगर भारत को देखा जाए तो कमर्शियल आर्ट में इंडिया एक बहुत ही ऊंचे पायदान पर है. तो बच्चों, आपको इसमें डरना नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं या आप में आर्ट्स में स्किल है तो आप उसको भी एज अ प्रोफेशन बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में. थैंक यू सर. सर, मेरा सवाल आपसे डायरेक्ट ये है कि आज के टाइम में हम लोग का जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, आप एक फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं, आपके मुताबिक बच्चों के लिए, खासकर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए फ़िज़िकल फिटनेस और स्पोर्ट्स कितने मायने रखता है? आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है सर. खाना पीना के साथ गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही महत्व है आज के समय में, क्योंकि एक समय ऐसा था कि ओलंपिक में महिलाओं की बहुत ही कम भागीदारी थी.
लेकिन उसके बाद जब 5वां ओलंपिक स्टार्ट हुआ तब से महिलाओं की जो है अधिक से अधिक महिलाएं जो है पार्टिसिपेट करने लगा। और इसका रीज़न क्या है कि महिलाओं को उस स्तर से लोग नहीं देखते थे। महिलाओं को सिर्फ मानता था कि घरेलू महिला है, इसको कुछ आगे नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी जो है पेरेंट्स भी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं और इसके साथ साथ जो लड़कियां हैं, लड़कियां भी अभी आगे बढ़ने के बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमको कुछ बनना है, कुछ आगे। ऐसे हमारे बहुत से उदाहरण हैं हमारे पास। पीटी उषा हैं, हमको सानिया मिर्ज़ा है, बहुत से भारत के खिलाड़ी हैं जो अपने आप को स्थापित कर ले और उससे जो गर्ल्स लड़कियां जो है उससे अपने आप को मोटिवेट होता है और वो आगे बढ़ने का बहुत प्रयास कर रहा है। पहले एक समय ऐसा था कि लड़कियों को खेल में पाबंदियां थी, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि लड़कियां भी बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। और हमें लगता है कि भारत में आने वाला वर्षों में महिलाओं की जो भागीदारी सबसे अधिक होगी महिला में ओलंपिक में, और हम लोग मेडल भी बहुत अधिक प्राप्त करेंगे। और खान पान की जहाँ ये है कि महिलाओं की, तो उसमें खान पान में हमको ऐसी पौष्टिक खाना चाहिए कि जो लोगों को अपने आप को फिटनेस बनाए रखना चाहिए। ये ज़्यादा नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा जो कि खान पान पर हमको खान पीन के साथ हमको फिटनेस लेवल पर ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि फिटनेस लेवल हम ज़ीरो करें और खान पान को बहुत ज़्यादा रखें। तो हमको एक जो खान पान की वो समय सीमा बना रहे, तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है दैट इज़ द जनरेशन ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके सामने महेंद्र सिंह धोनी एक एग्जाम्पल है। छोटे से शहर से निकलकर वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने जो भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो उसी तरह से बहुत से छोटे छोटे गांव और कस्बों से गर्ल्स और बॉयज़ निकल रहे हैं और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सर ने भी कहा कि आप फिज़िकली फिट रहें, आप खेल खेलते रहें, बिकॉज फिजिकल बॉडी रहेगा, माइंड फिट रहेगा, तभी आप सब काम कर सकते हैं। धन्यवाद सर। मैम, अभी यहाँ पे जितने भी टीचर्स आए सब सीनियर लेवल पे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि एक इंडिविजुअल के तौर पर आज मैं जो हूँ उसका सबसे बड़ा फाउंडेशन जो टीचर्स ने मुझे नर्सरी लेवल में, प्राइमरी में लेवल में पढ़ाया, उनका कंट्रीब्यूशन मैं कभी नहीं भूल सकता। तो आप लोग जूनियर लेवल में पढ़ाते हैं, आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है बच्चों को हैंडल करना, क्योंकि वहाँ सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हैंडल करना भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। सर, आपने सही कहा कि जूनियर लेवल में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने घर के माहौल से निकलकर एक स्कूल के माहौल में आता है। और कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि वे अपने मातृभाषा, मतलब कि अपने घर की भाषा में ही सिर्फ जानते हैं, उन्हें हिंदी भी नहीं आती है, उन्हें इंग्लिश भी नहीं आता है। तो ऐसे बच्चों के साथ मिलकर उसको आगे बढ़ाना, तो पहले हमें उस अपनी भाषा से उसको पहचानवाना पड़ता है कि इस भाषा में हम आपसे इंटरेक्ट होंगे, उसकी भाषा को हम समझते हैं, हमारी भाषा को वो समझता है। फिर उसके साथ मिलकर उसको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। सर देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चा घर से आ रहा है वो एक अपना माहौल लेके स्कूल आता है, ठीक है। अब हम लोग जब उससे इंटरेक्ट करते हैं, तो इंटरेक्ट करने के लिए अभी हम जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जैसे कि सर पहले भी बोले कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश पे हम लोग ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं। उसके बाद बेसिकली यहाँ के जो बच्चे हैं, जिस जगह पे हम लोग हैं, वो हिंदी भाषी हैं, हम लोग हिंदी जानते हैं या बंगाली जानते हैं। तो वो जब बच्चे अपने घर से आते हैं और उनको फर्स्ट स्टेज में जो हम लोग टैकल करते हैं, जैसे कि अभी बच्चे घर पे भी रह रहे हैं, तो गार्जियंस को समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ाई करवाया जा रहा है स्कूल में, हम लोग क्या पढ़ाते हैं, किस तरह से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं या उनको समझाने का जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, तो वो हम लोग किस लेवल से करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जितने गार्जियन आते हैं रिज़ल्ट लेने आए या पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आए, तो बोलते हैं कि मैम हमारे बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं, ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। तो जब आप उस बच्चे को घर पे टैकल कर रहे हैं, तो सोचिए वो एक बच्चा है, और हम लोग नहीं भी तो क्लास में एक साथ 30 या 35 बच्चे को हम लोग जब उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, तो वो सिनेरियो ही अलग होता है। उसको आप मतलब इस तरह से वर्डिंग्स में आप नहीं बता सकते जब तक वो आप क्लास में नहीं देखेंगे कि ये सिनेरियो है, कि आपको एक एक बच्चे पे आपको
जाके उसको समझाना है कि हाँ ये पढ़ना है, ऐसे करना है, ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो ये चीज़ सर बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग के लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है और वो लोग के लिए तो लर्निंग प्रोसेस है ही। थैंक यू। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपको कि जो आपका प्राइमरी लेवल का एजुकेशन होता है वो आपका फाउंडेशन है, उसी पर आपका जीवन भी पूरी तरह से स्थापित होता है। और मैम लोग जो जूनियर लेवल में करती हैं, मुझे लगता है कि उनका कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे संस्था ऐसी होती हैं जो उनके मेहनत को नज़रअंदाज कर देती हैं। और हम लोग हायर लेवल पर जैसे बात करते हैं कि 10th का बोर्ड का रिज़ल्ट कैसा हुआ और 12th का बोर्ड का रिज़ल्ट कैसा हुआ, लेकिन मेरा हमेशा से मानना, आज भी मैं जब उन टीचर से मिलता हूं जिन्होंने मुझे नर्सरी में और LKG UKG में पढ़ाया है, तो उनके साथ आज भी मेरा जो अटैचमेंट रहता है वो अलग रहता है। और मुझे लगता है आज एक इंसान के तौर पर मैं जो भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, उनमें उनका कंट्रीब्यूशन कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। क्योंकि हायर लेवल पर टीचर ने हमें साइंस, मैथ्स या इंग्लिश या सब्जेक्ट को तो सिखाया, लेकिन अच्छा इंसान बनना हमें उन टीचर ने सिखाया जिन्होंने हमें नर्सरी लेवल पर पढ़ाया। तो मैम आप लोग जो कर रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम लोग भी उस स्तर पर नहीं है कि हम लोग सबको फ्री एजुकेशन दे सके या सब जगह रीच कर सके। बट मेरा कहना है कि अगर थोड़ा सा समय हम लोग निकालें और अपने आसपास के इलाका में ही देखें तो हम लोगों को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स शायद मिल जाएं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत उनके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हैं, बट कुछ परेशानियां हैं उनके साथ। तो अगर उन परेशानियों को थोड़ा दूर करके अगर हम उन लोग को थोड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर, जो मैंने रिसर्च किया अपने स्तर से, कि आज के देश में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को आप देखते हैं कि आए दिन पेपर में कि सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, घर से चले जाते हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है लैक ऑफ मोटिवेशन उनके साथ है। अगर उनके सही तरीक़े से मोटिवेट किया जाए, उनको सही गाइडलाइन दिया जाए, बस उनके साथ एज अ टॉर्च बियरर हम लोग रहें, तो आई थिंक कि हमारा जो रोल होगा वो सच में दिखेगा उनके लाइफ पर। और हम लोग का काम सिर्फ पढ़ा के पैसा कमाना या व्यवसायीकरण नहीं है, हम लोग अपने लाइफ को भी इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले डॉक्टर कुमार विश्वास का एक सुन रहा था और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि आपकी जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण है। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जब 1907 में पंजाब के एक छोटे से गांव में एक सरदार का जन्म हुआ तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब 23 साल की उम्र में वो देश के लिए फांसी चढ़ गया तो हर माँ ये ख्वाहिश करती थी कि उनके कोख से भगत सिंह पैदा हो। तो आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण होती है। हम क्या करके मरें ताकि लोग हमें याद करें, मेरा इम्पैक्ट रहे समाज पे। धन्यवाद।